Hello students and good morning to all of you. This is Brijit Singh and I am going to discuss with you the Income Tax Law and Practices Unit 4th. Part of Unit 4th. This is another topic of the Unit 4th, computation of total income of individuals. So basically I discussed with you the in my previous lecture set of carry forward losses and set off and all those things I discussed with you. And today I am going to discuss with you the computation of total income of individuals, and this is the first lecture of that particular session topic. So let's start. So first of all, you just understand the important terms. So I already discussed with you in my different introductory lectures of the income tax act. So first, the person SSC assessment year. The person is, who is the person? Person is the person, any natural person who is Indian resident and other who again incomes from the various sources like salary, income from house property, income from other sources, etc. Assessee, the person who is assess the incomes. Assessment year kya hota hai? That is the assessment year. Assessment year, like the previous year, it is a financial year. Assessment year is a next preceding years. It is known as assessment year, in which we assess the incomes. Then incomes, gross total income क्या होती है, total income क्या होती है, casual incomes क्या होती है. तो ये सारी चीजें आपके साथ हमने डिस्कस की हैं. तो लेट्स द फर्स्ट थिंग इज पर्सन. सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में हम देखें, द वर्ड पर्सन इज वेरी वाइड टर्म्स इटसेल्फ. इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI या लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज पर्सन इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स. एसएससी द पर्सन. एसएससी क्या होता है? एसएससी बेसिकली सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में आता है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 इनकम टैक्स एज पर द Income Tax Act 1961. The assessee means a person by whom any tax or any other sum of money is payable under this act. ठीक है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंडिविजुअल शाखा या कोई भी जो पर्सन है जो कोई भी पैसा जो पेबल करता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इट इज नोन एज द assessee. तो person in respect of whom by any proceeding under this act has been taken for assessment of his income, deemed assessee under the provision of this act. Any person deemed to be assessed in the under of provision of act. So deemed assessee as under the provision of this act, any person deemed to be assessee in under the provision of the Indian Income Tax Act. So all these things, assessment years kya hota hai? Section 2 subsection 9 mein aata hai. I already discussed with you, and again I discussed with you, and it is a another important aspect which is very important for you and remember always. And when we go for the calculation of the incomes, so it means the period of 12 months commencing of 1st April to every year, and in India got the maintenance of its account for a period of 12 months, 1st April to 31st March of the every year. And income tax department has also selected the same year for the assessment of the procurement. So it is a financial year of the government of India, during which the income of the person relating to relevant years previous year is assessed to tax. Assessment year is 2021, which is commenced in the 1st April 20 and end will the 2021. Income of previous year assessed is taxed during the next following years. It is known as assessment years. Previous year is the years which means the financial year immediately preceding the assessment year. ठीक है, तो जो भी असेसमेंट ईयर से पीछे का ईयर जस्ट होता है उसको हम प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर कहते हैं. ये भी 12 मंथ्स का पीरियड होता है. ये भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही होता है. प्रीवियस ईयर इज अ ईयर इन विच द इनकम इज अर्न. जिस समय में, जिस पार्टिकुलर पीरियड में हम इनकम को अर्न करते हैं उसको हम पीरियड ऑफ ईयर्स कहते हैं. लाइक 1 अप्रैल 2019 to 31 March 2020, that will be close on discharge, and it is also known as an 19 and 20. The previous year is 1920 and assessment year is 2021. सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में एक और चीज है कि इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस, कोई भी नया बिजनेस जब सेटअप करते हैं तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर वुड बिगिन फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस. जब भी वो स्टार्ट होगा बिजनेस तभी होगा, और एंड विद द 31 मार्च. ये ध्यान रखना है आपको. नाउ द ग्रॉस टोटल इनकम. व्हाट इज द ग्रॉस टोटल इनकम? सेक्शन 80B सबसेक्शन 5 में आता है. एज पर द सेक्शन 14, इनकम ऑफ द person is computed under the following heads: salaries, income from house properties, profit and gains of business and profession, capital gains, income from other sources. These 5 heads of the incomes are calculated the incomes under all these 5 heads.
तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज इनकम्स जो है हमें फाइंड आउट करनी होती है, और उसके बाद ही हम टोटल इनकम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज अ डिस्कशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या होती है? तो बेसिकली सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में टोटल इनकम क्या होती है? बेसिकली टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी इज अ ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन। ठीक है, तो जो भी ग्रॉस टोटल इनकम हम कैलकुलेट करेंगे उसमें से डिडक्शंस जो एटीसी टू एटीयू जितनी भी डिडक्शंस होती हैं वो हम डिडक्ट कर देते हैं, तो आपके पास टोटल इनकम निकल कर आ जाती है, या नेट इनकम भी जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस इज द कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्टिकुलर्स और देयर इज अमाउंट, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन भी हम इसको कहते हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स भी है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये आ जाता है। तो ये सारे हेडेड जितने भी 5 हेड्स होते हैं, इन 5 हेड्स को हम प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आती है? ग्रॉस टोटल इनकम आती है। देन डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अंडर सेक्शन 80C to 80U की जितनी भी डिडक्शंस होती हैं इंडिविजुअल्स के लिए वो हम यहाँ पर डिडक्ट कर देते हैं। देन वी गेट द टोटल इनकम, और इट इज आल्सो नोन एज नेट इनकम या टैक्सेबल इनकम भी हम इसको कहते हैं। इसको समझना जरूरी है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या है? सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, वो आएगा, टैक्सेबल अलाउंसेस है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट है, देन वी गेट द ग्रॉस सैलरी। इसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस दी जाती हैं वो यहाँ पर आपकी डिडक्ट हो जाएंगी। ठीक है, जो भी डिडक्शन गवर्नमेंट के द्वारा जाती हैं, तो देन नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी यू गेट। ठीक है, यहाँ पर जो है नेट टैक्सेबल सैलरी आपकी मिल जाएगी। देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आप निकालेंगे, पूरे साल की जो एनुअल वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट विच आई डिस्कस विद यू इन द डिस्कशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, उसमें आपके साथ डिस्कस किया था कि कैसे नेट वैल्यू एनएवी हम फाउंडेड करते हैं किसी प्रॉपर्टी की, उसमें से डिडक्शन जो है अंडर सेक्शन 24 जो डिडक्शन है वो डिडक्ट हो जाएंगी, और देन वी गेट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 2 हेड हो गए। थर्ड हेड में क्या होगा? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है, नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी होगा, एड एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड टू द प्रॉफिट एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, जो भी लेस या ऐड करना है, जो भी एडजस्टमेंट्स है वो यहाँ हम एडजस्ट कर देंगे। देन नेट प्रॉफिट और गेन्स ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन वी गेट। तो थर्ड जो हेड है वो भी हमारा पूरा हो जाता है। देन कैपिटल गेन्स एज कंप्यूटेड, यहाँ पर लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D। ठीक है, ये एग्जम्पशन जो है कैपिटल गेन्स में आती हैं, इनको हम डिडक्ट करते हैं। आई डिस्कस विद यू इन द डिस्कशन ऑफ इन द लेक्चर्स इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, जब हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन डिस्कस कर रहे थे तो इसमें डिस्कस किया है, तो इनको भी ध्यान से देखना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ग्रॉस इनकम आपके पास जो भी अदर सोर्सेज होती है वो लेस डिडक्शन अगर कोई है तो डिडक्ट कर देंगे, देन गेट द नेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ऑल 5 हेड्स वी गेट हियर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, पांचों हेड आपके हो जाएंगे। देन वी गेट द ग्रोस टोटल इनकम, ABCDE, पांचों हेड्स को हम टोटल कर देंगे किसी भी इंडिविजुअल की इनकम को, तो हमारे पास क्या होगा? टोटल यानी कि ग्रोस टोटल इनकम आपके पास आ जाएगी। उसके बाद इसमें से लेस करना है डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन चैप्टर 6A सेक्शन 80C to 80U, जितनी भी डिडक्शंस है 80C से 80U तक वो सब यहाँ डिडक्ट हो जाती हैं। तो दिस विल बी डिस्कस विद यू, देन वी गेट द टोटल इनकम। तो हमारे पास फिर हमारे जो है टोटल इनकम आपको मिल जाएगी। तो इस तरह की जो इनकम्स है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह के इस फॉर्मेट को याद रखना है, और पार्टिकुलरली ये फॉर्मेट ही आपकी जो हेल्प करेगा। So thank you very much. This is all about in my first lecture. Thank you.